भाई यहाँ पे पहली बार गए थे इस साल में। अच्छा। और नीचे अच्छा। अभिषेक भाई इधर। याद पीछे ले लो आपका। राइट में वेट वेट वेट। हाँ प्लीज़ 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 यार अपना इवेंट। हो गया लेफ्ट का। थैंक यू। Your side gets very upset. Let's look at left side. Thank you. Thank you. I have been actually, I've known Amit from like when he literally just started. So I've been in his calendars before also, and I'm very excited to go and see all of the pictures of this theme. I love the theme. I think it's really glamorous. I'm very upset that he didn't call me for this theme. No, no. But yeah, he always does fabulous work. I've seen his growth as a photographer like from the beginning. So I'm just very proud of him. When I shoot with him, okay, so firstly, we both are Leos. So we love each other because we understand each other. And he is just my teddy bear. He's such a sweetheart. He's so beautiful to work with. The energy is so good. And, it's like work doesn't feel like work. The shoot is just such fun, and we're like, he gets lovely home food, like he always feed us well, and the pictures turn out stunning until today. Like even if I posted, I think the last time I shot with him was in 2021, and if I repost those pictures, people still are enamored. He captures something so beautiful. I like his work. I love him as a person. Oh God, I actually stopped watching Big Boss for quite a few years. I wasn't really watching it, but in between I was a little unwell, so I did start watching a little bit. But I'm not really following. Well, every year there are big names. Yeah, I haven't watched my own season, by the way. Okay, was it good? Did you enjoy it? Thank you. Thank you. But honestly, I feel like they've changed the format from what it originally was, and that's what's making a big mess out of this show, because people are just coming in and कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, information दे रहे हैं. You know what I'm saying? So people can keep changing their track. So
That is one. They constantly find this need कि सबको झगड़ा ही करना है. हमारे सीजन में झगड़ा के अलावा, you know, we were actually shouted at कि हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे. You know, and Salman was very proud of us, but the team was very unhappy. Now, झगड़ा के अलावा भी entertainment हो सकता है यार. There was whatever. There was flirting. There's love. There can be so many things. There were so many friendships. I and Tanna had like the most beautiful friendship. I had made friends with so many people. We're still in touch, all of us. We still meet. This is our 10th year. So we're going to have a try and do a 10th year celebration with everyone. So I made like amazing friendships from this show. But beyond, I mean, for us, there were like 10, 11 weeks where we did not fight. You know, and in our season, and I still get messages where people say we are re-watching your season because now it's very boring. You know, because how much will you watch fighting? तुम कितना ही, you know, how much will you see screaming, shouting? उसके आगे भी कुछ है. You know, when people are screaming and shouting, हमको समझ में भी नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं टीवी पे. You know, so okay, मतलब का झगड़ा हो या चलो यार कंपटीशन हो रहा है, you know, competitive है हम लोग, तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, okay, ठीक है. लेकिन उसके आगे भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना. ये तो सीज़न मतलब मुनावर का पर्सनल लाइफ के उधर चला गया, फिर अंकिता और उसका पति का कुछ दूसरा दुख की स्टोरी चल रहा है उनका. मतलब ये तो कुछ सास बहू टाइप सीरियल लग रहा है मुझे. यू नो, बहुत बोरिंग है. और उसके बीच में वो सिंगल मनारा फंसी हुई है, तो क्या ही हो रहा है. यू नो, इट्स लाइक आई फाइंड इट अननेसेसरी. वेयर इज द एंटरटेनमेंट? वेयर इज द फन इन द टास्क? वेयर इज द यू नो, नन ऑफ दोज थिंग्स. लोग तो आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बाहर से, फ़ायदा ही क्या है? यू नो, इट डजंट मेक सेंस. लाइक द फॉर्मेट ही चेंज हो गया. यू अंडरस्टैंड? एंड इट्स नॉट द कंटेस्टेंट्स फॉल्ट, इट्स द मेकर्स फॉल्ट. थैंक यू. Controversial. I'm very excited. So Amit, I know Amit from a very long time, and this is the first time कि हमने कैलेंडर के लिए शूट किया है. हालांकि हमने शूट किया है पहले, but when he asked me कि Jamie, I need you for the calendar, I was very surprised because as you know, मेरा काम कॉमेडी में है and I don't do like modeling and all of that, and I don't have the face of a model. So I was very surprised, but I'm so excited and the pictures come out great. So I'm very, very happy. Anything coming up recently or movie? Tell us something about your upcoming project. Yes, very exciting year for me. पहली बात Feb में I'm doing my first Jamie Lever live show in Mumbai. So I'm very excited about that. It's my comedy special. And then my film is releasing Crack with Vidyut Jamwal ji. Everybody knows him and I love him. And yeah, my film is coming with him. And then I'm doing my first Telugu film. So it's a great year for me and I'm super excited. Thank you so much. Thank you.
वेल आई थिंक अमित खन्ना जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फोटोग्राफर्स हमारी कंट्री में आज की तारीख में. इनका काम तो मैं कब से देखता आ रहा हूँ, अब उनके साथ काम भी किया है मैंने. वी हैव डन सम एड फिल्म्स टुगेदर और अब होपफुली वील बी डूइंग अ फिल्म टुगेदर ऑल्सो इंशाल्लाह, गॉड बी विलिंग. और इनका ये जो कैलेंडर लॉन्च है लास्ट ईयर भी हुआ था, मैं मिस कर गया था. दिस टाइम आई मेड श्योर दैट आई हैड टू बी हियर बिकॉज अंकित भाटिया जी जो है, जिनकी उनकी कंपनी है ए स्क्वायर एंटरटेनमेंट, बहुत ही प्रिय मित्र है. एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आई होप कि किसी दिन वो लोग मुझे भी कैलेंडर में यूज़ करें एज अ मॉडल. यस. आज लॉन्च था, काफी मजा आया. क्या कुछ कहना चाहोगे शो को लेके, आपके किरदार को लेके? वेल मेहंदी वाला घर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशन से भरा हुआ शो बन रहा है. बहुत टाइम के बाद आपको एक प्योर इमोशन वाला शो देखने को मिलेगा. इसमें कोई वैम्प अपनी आंखें ऐसे कर मटका के बातें नहीं करने वाली है. इट्स ऑल गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इमोशनल शो. मेरा किरदार है भाई, एक भाई का, विजय नाम है उसका, जो कि नंबर 2 का भाई है. एंड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फन लविंग प्यारा सा बंदा है. लेकिन उनके फैमिली में कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उसका भाई घर छोड़ के चला जाता है. एंड दैट फोर्सेस हिम टू ऑल्सो लीव होम. और फिर 24 साल बाद वो लोग वापस आते हैं. अब वापस आके क्या होगा, दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग. थैंक यू. बिल्कुल भी नहीं. थैंक यू. थैंक यू. बिग बॉस कौन जीत रहा है? एनी आइडिया? अभिषेक, श्योर. आइए थोड़ा शब्द करते हैं. सो सबसे पहले फर्स्टली टेल अस समथिंग अबाउट अमित कैलेंडर. अमित और मेरा एसोसिएशन तकरीबन 5 साल का है. आई थिंक उन्होंने बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं और बहुत खूबसूरती से वो पिक्चर्स खींचते हैं. इनफैक्ट मैं बहुत टफ हूँ एज अ पर्सन टू शूट करने के लिए. मेरे अपने टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, पर आई थिंक वो बहुत ही खूबसूरत से मेरे कलेक्शंस को प्लस मुझे उन्होंने शूट किया है. इनफैक्ट मेरा वृंदावन गाथा और मेरा फॉयल फैंटेसी कलेक्शन जो आने वाला है वही शूट कर रहे हैं, और वृंदावन गाथा भी उन्होंने शूट किया था. आज उनका कैलेंडर लॉन्च है, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. मे लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज ब्लेस. आपको क्या लगता है, आपने मीडिया से पूछ लिया बिग बॉस कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? वेल मैं तो अंकिता और अभिषेक को ही रूट कर रहा हूँ. आई थिंक दे आर 2 कंटेस्टेंट्स ऑफ माय फेवरेट एंड आई विश दोनों में से कोई भी जीते, मेरे को बहुत खुशी होगी. मुनावर के बारे में क्या लगता है? उन्होंने जिस तरह किए गए, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई थी जी. घर के अंदर. आई थिंक सो उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ. हर इंसान की एक अपनी निजी ज़िंदगी होती है, उसको नेशनल टेलीविज़न में लाना, हमको किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए. तो मैं उनके लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ. आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर. आप गेम के प्रति बात कीजिए, किसकी पर्सनल लाइफ में क्या बाहर हो रहा है वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी है. तो आई थिंक सो गेम को गेम की तरह देखना चाहिए. अंकिता ने कई बार सुसाइड करना. जी जी. उनकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा कि सिंपैथी के लिए उन्होंने नाम रखा. आपको क्या लगता है? आई थिंक से देखिए, टू इज टू इज ओन. आई थिंक जब आप उस घर में रहते हैं 24 घंटे, तो आपके मुंह से 50 अच्छी बातें, 50 बुरी बातें भी निकलती हैं. आप एक मुखौटा, एक फसाड, यू कांट पुट अ फसाड इन फ्रंट ऑफ द पीपल. तो आई थिंक तो अंकिता ने जो कहा वो जज्बातों पे कहा. आंटी उनकी बहू है, तो आंटी को, आई थिंक आंटी को उतना लोग ट्रोल कर रहे हैं. आई फील वेरी सॉरी फॉर हर. पर बहुत स्वीट है वो. हम लोग को बहुत इंटरटेन किया उन्होंने, बहुत मज़ा आया. तो मैं आशा करता हूँ उसको हम मजाक मस्ती की तरह ले तो वही बेटर होगा. वेल टॉप 3 में मैं अंकिता को डेफिनेटली देखता हूँ, एंड मैं अभिषेक को देखता हूँ, और मैं मुनावर को देखता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो जैसे कि आपको पता है कि आगे आ रहे हो क्या कैमरे के? अच्छा, तो जैसे कि आपको पता ही कि हर साल अमित का कैलेंडर लॉन्च होता है, और कैलेंडर होता है हर साल का. लास्ट ईयर भी बहुत सारे आप में से लोग हैं जो थे कैलेंडर पे, और इस बार थीम दूसरी है और कुछ फेसेस वही हैं और कुछ अलग हैं, सेलिब्रिटीज़ नहीं. पिछली बार मैं भी था, इस बार मैं भी नहीं हूँ उसमें. बट
मैं पीछे से प्रोडक्शन का काम कर रहा था, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी कुछ मिनट बाद लॉन्च होने ही वाला है, तो सारी पिक्चर्स सामने आ जाएंगी और आई एम श्योर कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सबसे खास बात क्या है? इस साल के कैलेंडर की, इस साल की पूछ रहे हो आप? इस साल हमने जो कैलेंडर किया उसमें प्रोडक्शन वाइज काफ़ी मेहनत लगी है। प्रॉप्स वाइज हमें, आप कोई भी जो भी पिक्चर देखोगे उसमें जो सेटअप, जो आर्ट वर्क हुआ है उसको जुटाने में काफ़ी मेहनत का काम था। तो हमने जैसे केज बनवाया बड़ा, मून बनवाना पड़ा, और भी काफ़ी सी चीज़ें थी जो हमें क्रिएट करनी पड़ी। तो ये स्पेशल था कि काफ़ी, और आउटपुट भी अलग ही निकल के आया। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ मिनटों में आपके सामने आ जाएंगी सारी पिक्चर्स। थैंक यू, थैंक यू। कल लोग आ रहे हो और आप लोग पता है कुछ? कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। बता नहीं बंद है तो दिव्या जी बता नहीं रहे क्या? आज तो फर्स्टली अमित जी के बारे में, उनके कैलेंडर के बारे में क्या? सो आई थिंक ये इवेंट के लिए हम पूरे साल वेट करते हैं एंड हर बार कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। इस बार का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है बिकॉज वो जो एरा है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज फुल फॉर्म में। तो अमित इज़ लाइक फैमिली, यू नो, व्हाटएवर ही सेज वी आर ऑलवेज एक्साइटेड। Anything coming up after Yes, there's a song that is coming up next month and उसके बाद अभी कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा काम से ब्रेक होगा बिकॉज यू ऑल नो व्हाई। यस, वेडिंग, मेरा गला भी खराब हो गया। how's the planning going on? द प्लानिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल बट इसमें भी अपना अलग ही मज़ा है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ एज सिंपल एज पॉसिबल आई कैन। The date fix, we are invited. यू गाइज आर ऑलवेज इन्वाइटेड एवरीवेयर ऑफ माई लाइफ बिकॉज आप लोगों ने ही बनाया है सब कुछ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द न्यूज़ वेरी सून। Okay. Divya, what about Big Boss? Are you following Big Boss this year? मतलब आई एम जस्ट सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लिप्स हियर एंड देयर बट इतना शो फॉलो नहीं कर रही हूँ। पहले जैसा चार्म नहीं रहा उसका। क्यों ऐसा क्यों? जब हम पहले किसी भी डिनर टेबल पे बैठते थे, एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट बिग बॉस, लाइक इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑफ द टेबल, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग। But this time, big names are there. Do you know anyone of them? There have always been big names with Big Boss, but जैसे तो कहते हैं ना, शो हिट बनाते हैं वो लोग जो अंदर कुछ, you know, if they come up with something, there's something to learn, something to hate, something to love. But the bigger name wins the Big Boss OTT, right? I wasn't a bigger name, there were many bigger names, but yeah, जो अच्छे से जवाब दे सकता है, I guess that one wins. तो लोगों को अभी जवाब देना शुरू करना पड़ेगा अंदर, only then they'll win. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye.